Guys, welcome to the final vlog of this South trip. The next destination that we reached was Madurai. Chennai may be the capital of Tamil Nadu, but Madurai claims its soul. Madurai, if I had to describe it in one word, it would be contrast. It was one of the oldest cities in India, a metropolis that traded with ancient Rome and was a great capital long before Chennai was ever dreamed of. Okay, fine. अब ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी ना. So we had our lunch and we visited the most famous temple of Madurai. Unfortunately, phones were not allowed, so I could not capture much clips here. So we again went back to our hotel. The next day, we all again got ready to visit a place called Rameshwaram. And here comes a question for you. Please comment down the famous personality that was born in Rameshwaram. After about 3 hours of our bus journey, we finally reached Rameshwaram. Here in temples, mostly phones are not allowed, so I don't have any video clip of that. But yeah, so finally, after our darshan, we are heading back to our bus because we had to visit this destination that was really so peaceful and beautiful. This place is called as Dhanushkodi, the last point of India. It is a place where two oceans, that is Indian Ocean and Bay of Bengal, meets. As per Ramayana, if we see, Dhanushkodi is the place where Ram Setu was built. I felt the luckiest to be here. Yeah, so that was our last day in Madurai. We had to travel to the next destination, so here are people getting ready. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है तब्बू. इमोशनल बैगेज से भी भारी लगेज उठा के उतरते हुए. आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है. क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास दुख है, दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, तकलीफ है, समस्याएं है, कठिनाइयां है, बेरोजगारी है, मजबूरी है, अकेलापन है, तन्हाइयां है, जुदाइयां है, बदसूरती है, बदकिस्मती है, बेचारापन है, लाचारी है, बोझ है और जिम्मेदारियां भी है. इतना सब कुछ तो है मेरे पास, इतना सब कुछ तो है. और क्या चाहिए मेरे को, क्या चाहिए? मोहिनी की यहीं पे शादी करवा के उसको बसा देंगे हम. चुप रहे. मोहिनी से मिलने हम यहाँ आया करेंगे. बस. वो क्या है ना, बाकी का आप लोग सुन नहीं पाओगे क्योंकि हमारी बकवास तो बंद हुई नहीं इसके बाद भी. तो ऐसे ही बकवास कर करके हम पहुंच चुके थे कन्याकुमारी. और सबसे पहले तो हमने अपना बैग वगैरह अपने रूम में फेंका और पहुंच चुके थे इस डेस्टिनेशन पे क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था. The beautiful coastal town of Kanyakumari, Tamil Nadu, is located at the southern tip of India. During the British colonial era, this region was called as Cape Comorin. Anyway, so the place we were heading to was called as Vivekanand Rock Memorial, which was located around 500 meters off the mainland. Wait. There was a statue back there in one of the cliff that was called as Thiruvalluvar. Could you hear the joyful sounds in the background? Anyway, so we finally reached the Vivekanand Rock Memorial. It was believed that Swami Vivekanand swam across the seashore in Kanyakumari to reach the rock mid-sea, and he meditated for 3 days and nights on the rock until he is said to have attained enlightenment there. If I talk about my experience over here, this place was really peaceful and it had strong breezes coming from the sea, as you can see here.
And just look at these beautiful items. In the evening, we returned back to our rooms. If we see, we approximately had only half day in Kanyakumari, but it was really worth it. The next day, we all got ready so that we can go to our next destination. So here we are, about to leave this beautiful place. But हमें क्या, हम तो पहाड़ी हैं, हमें तो वैसे भी पहाड़ दिखते ही रहते हैं. So हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सबकी ड्रीम डेस्टिनेशन, जो है गोवा. So इतना सफ़र करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे गोवा. सफ़र हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी. हम पहुंचे थे गोवा ऑलमोस्ट सुबह के 2 बजे या रात के 2 बजे बोल लो. तो सबसे पहला काम मैंने, प्रगति और तब्बू ने ये किया, जो था बीच में पे जाना सुबह के 2 बजे और वहाँ चिल्लाना. फाइनली हम पहुंच चुके थे गोवा. एनीवेज, पर पता है, अगर आप मुझसे पूछो ना कि पूरी साउथ ट्रिप में मेरा फेवरेट पार्ट कौन सा था, वो ऑब्वियसली होंगे गोवा के 2 दिन. हमने इतने मज़े करे, हमने इतनी मेमोरीज बनाई है ना ये 2 दिन, कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ. मतलब गोवा की वाइब ही अलग है. मतलब समझ रहे हो ना मैं कितनी एक्साइटेड हूँ ये बातें बताने में भी. तो जब मैं वो चीज़ें एंजॉय कर रही थी तब कितनी खुश होंगी. ओके फाइन, ठीक है, नहीं बोलती ज़्यादा. हाँ, अब सुन लीजिए हमारा बेसुरा गाना. शिवानी, वैसे ये तू है क्या? और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, हम रुके थे साउथ गोवा में और अब हम जा रहे हैं नॉर्थ गोवा में. वाह, कितना अच्छा लगता है ना बोलना साउथ गोवा टू नॉर्थ गोवा. आई मीन डिस्टेंस ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का ही है. सो हेलो गाइस, ये हूँ मैं पैसे फूकते हुए. हमने पूरी साउथ ट्रिप पे यही तो करा है, और तो क्या ही करा है. बस एक बार जीते हैं और बस एक बार ही जीते हैं. इस स्लोगन पे ना हमने ऑलमोस्ट अपनी पूरी साउथ ट्रिप काटी है. आई नो दैट डजंट मेक एनी सेंस, पर चलो जो भी है. सो ये है हम लंबी कतारों में इंतज़ार करते हुए. सो फाइनली हम पहुंच चुके थे क्रूज पे. पर द थिंग इज, यहाँ पे ना हमारे सामने आ चुका था रियलिटी वर्सेस द एक्सेप्शन. आप सोच रहे होंगे वो कैसे, आप खुद ही देख लीजिए. सो नेक्स्ट डे हमारे दिन की शुरुआत हुई थी पूल से. द थिंग वॉज कि कुछ घंटों बाद हमें निकलना था अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए. सो वी हैड ओनली 2 to 3 hours टू एन्जॉय, जो हमने करा. सो ये हैं हम फाइनली गोवा छोड़ते हुए. हमें तो बहुत दुख हुआ, पर चलो, आई विश और मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि इन फ्यूचर, आई नो ये पॉसिबल नहीं है सेम लोगों के साथ सेम जगह, बट आई मैनिफेस्ट कि हाँ फ्यूचर में ऐसा कभी हो. तो ये हम फाइनली पहुँच चुके थे मुंबई. एंड फोन संभाल के कोई छीन के ले गया ना, तेरे बाहर से फोन लग नहीं ऐसे. हाँ ठीक है तब्बू, फ़ोन तो मेरा ही रह गया चोर को चोरी करने के लिए. एनीवेज, मम्मा देख रहे हो ना, इसलिए मुझे आपकी कमी मुझे महसूस नहीं हुई. और नेक्स्ट डे ये रही मैं और मेरी क्लास मुंबई की गलियों में चलते हुए. ओके फाइन, ठीक है, अब नहीं दूंगी ज़्यादा ज्ञान.
साक्षी नंदिनी स्लीपिंग हियर। ये है ये जो ताश के पत्ते खेलने वाले हैं। और ये देख इनको। से हाय। ये इधर सोए हुए हैं, ये भी सोई हुई है श्रुति। यहाँ पे हमारे कपड़े सूखते हुए ये दो मोहतरमास। कुछ बोलना चाहेंगे आप? कैसे लग रहा है मुंबई सपनों के शहर आके? ओके, तू बता। खाना क्या है मैम वैसे? और बटर। ओ साज हूँ मैं खुद से ही नाराज हूँ मैं, सीने में जो कहीं पे दबी है ऐसी कोई आवाज हूँ मैं, सुन ले मुझे तू बिन। So guys, this is where the girls are staying. ईशा लेट गया तूने, मेरे को फिर चला। इसको घर जा। वाह वाह, देखिए कौन एंट्री मार रहा है। रॉक बैंड कनिका। With unlimited talks and unlimited giggles, we finally reached this institute that was called as Bombay Natural History Society, a pan-India wildlife research organization that has been promoting the cause of nature conservation since 1883. ओके सो ज़्यादा ज्ञान तो नहीं दिया मैंने, तो एंड में हम वापस जा रहे हैं अपने रूम आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रीट शॉपिंग, जो था मुंबई की मोस्ट फेमस जगह पे जिसका नाम है कुलाबा। सो वी फाइनली रीच द रेलवे स्टेशन टू गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट वाज नासिक। गाइस, चिलिंग और रेलवे स्टेशन चल रहा है। You know what? It is said that even the most unenjoyable things become enjoyable if you have the right company with you. Yeah, so I had. By the way, I'm really missing you all. Can we just go back? Yeah, so we finally reached Nasik. The next day, we reached Nasik's most famous temple. Later, we reached the Agricultural Engineering College. This institute is one of the leading institutes in the city. As you can see, there are various technologies that are used. Today's day was really exhausting for us. So yeah, let's head back. Just a normal day in our lives. भाई मरना नहीं है मैंने।
पर आप कंटिन्यू कीजिए अपने दुख जाहिर। मेरा देखिए जैसे आप देख सकते हैं ये प्रद्युमन जो सामान को रखे जा रहा है। मेरा सूटकेस भी ऊपर है जिसके गिरने का बहुत खतरा है। Yes. अगर वो गिर के टूट जाए तो उसका कौन मुझे नया सूटकेस ला के देगा? हाँ सो तो है। हेलो गाइस, वेलकम टू मोहिनी's यूट्यूब चैनल। गाइस देखो हमारा लगेज तो ठीक था, बहुत ज़्यादा है, उसके वजह से हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है। हमारे सूटकेस निकाल के ऊपर डाल दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग सूटकेस ऊपर रख रहे हैं और काफ़ी यहाँ पड़े हुए हैं। अगर सूटकेस नीचे गिर जाता है मेरा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बताइए कौन जिम्मेदार है? या जिसने बैग बांधा है वो कौन मुझे नया सूटकेस ला के देगा? वाह। और मेरी प्रेस भी लवारिस घूम रही है। हाँ इसकी प्रेस भी। As you can see, we finally reached the Madhveshwar Bird Sanctuary that is located in Bharatpur of Maharashtra. It is a bird sanctuary that is located across the river Godavari. This has resulted into the formation of rich environment for biological diversity. There are various species of aquatic plants, animals as well as birds. This bird sanctuary had really a peaceful environment away from all the hustle bustle of the city. Hi guys, I hope you are doing well. So today we are present in the bird sanctuary. दिखा क्योंकि मेरे को नहीं पता कैसी लोकेशन है क्या नहीं. So there were a lot of species of birds present over here, which we will see in the later video. तब वो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं जरा आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, अपना लूज करने की कोशिश कर रही हूँ वेट। मेरी कजन की शादी आ रही है अगले महीने, you know। और हमें कौन इनवाइट करेगा? बस पहले मेरे पास इनविटेशन आ जाए। तो आपको बर्ड सेंचुरी में आके कैसा लगा? बहुत अच्छी फीलिंग हुई। पहली बार बाइनोकुलर्स अपने हाथ में पकड़ी क्योंकि यूनिवर्सिटी ने दिए नहीं, हमें आज तक कभी दिखाया भी नहीं है। सो ओहो दुख। और अटैचमेंट के टाइम पे भी हमें मिला नहीं। क्या क्या स्टिल कॉम्प्रोमाइजिंग? She's compromising by doing this. Pragati, would you like to tell something? No comments about this. How can we compromise like this? Later that evening, we had lots of fun. This is Bhaiya, this is Tabu. अब मैं बस यही सोचती हूँ कहाँ गए वो दिन. ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है बट आई एम स्टिल स्टक हियर. फोन पे लगे हुए ट्रिप, ये लोग ट्रिप पे हैं फिर भी फोन पे लगे हुए हैं. आप कुछ बोलना चाहेंगे? Why are you speechless? मैं बोलना चाहूंगी। हाँ बोरिंग लोग, मेरे वीडियो को कंटेंट भी नहीं मिलेगा. जब मेरा मूड होगा मैं आपको कंटेंट दूंगी। हाँ फिलहाल ये दिखा दे मेरे फुटने में लगी। ओ ये देखिए इसकी घुटने में लगी है जो ये गोवा टाइम से चिल्लाई जा रही है. और खेलो रेतों में ना बस. मेरे YouTube के दर्शक बोलेंगे तुम तीर्थ यात्रा पे चले हो कि एजुकेशनल ट्रिप पे. The next day, we reached Triambakeshwar. Triambakeshwar temple is a religious center having one of the 12 Jyotirlings. It was about 28 kilometers away from the city of Nasik. As the name suggests, Triambakeshwar means 3 links, an iconic form of Shiva, Vishnu and Brahma. It almost took us 2 to 3 hours to reach the main temple. Till then, let's hear a mythological story. Jyotirling means column or pillar of light. This thumb symbol represents that there is no beginning or end. When Lord Brahma and Lord Vishnu had an argument about who was the supreme god,
Lord Shiva appeared as a column of light and asked each one to find the ends. Neither could do it. It is believed that the places where these columns of lights fell is where the Jyotirlings are located. Triambakeshwar Jyotirling is the only one of the 12 Jyotirlings in India that does not only honor Lord Shiva but the other two gods in the Holy Trinity, that is Lord Vishnu, Lord Brahma as well. इतनी मेहनत के बाद फाइनली हम गेट के पास तो पहुंच ही चुके थे. सो फाइनली एंड तक हमारे दर्शन तो हो ही चुके थे. एक्चुअली कैमरा फिर अलाउड नहीं था तो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट शूट एनी क्लिप्स. सो एनीवेज, तो फाइनली इसके बाद हम पहुंच चुके थे अपने रूम पे वापस. सो ये हमारी लास्ट इवनिंग थी नासिक में. अब हम जा रहे हैं वापस अपने घरों पे क्योंकि हमारी ऑफिशियली ये ट्रिप ख़त्म हो चुकी है. आपके दुख बताइए. मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, लेकिन मैं सो नहीं सकती. जो रात के 2 बजे यहाँ स्टेशन पे खड़े हैं बच्चे. ऐसा गाना गाऊंगा मैं. गाइस हाय, कप्पा खा लो गाइस. कपड़ा खा लो. नहीं बच्चों कंटेंट के लिए वही नहीं. ये है गाइस थोड़े बच्चे यहाँ पे. 1 मिनट रुकना, मेरे को चप्पल पहननी है. ये चले हुए थैले उठा के. मैं चला रही मैं यार, मेरा तो खाना भी नहीं. दिल्ली की कड़ाके की ठंड में बच्चे बैठे हुए. यहाँ बच्चे तैयार होते हुए और यहाँ पे सारे हटियो. कनिका, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? ये ईशा यहाँ पे तैयार होती हुई है. लोग अपने हाथ गर्म करते हुए सर्दियों में दिल्ली पहुँचने के. Here we are. Guys, कैसा लग रहा है तुम्हें? आप लोग सोच रहे होंगे हम यहाँ क्या कर रहे हैं. द थिंग वॉज हम पहुँचे थे सुबह के 1-2 बजे एंड हमारी जो ट्रेन थी वो थी 12-1 बजे दोपहर के. तो टाइम था तो वी थॉट टू गो टू सरोजनी नगर, जो होता है हर लड़की का एक ड्रीम डेस्टिनेशन. तब्बू और कनिका को तो इतना फोर्स किया बट वो स्टिल चले नहीं. तो मैं और प्रगति थे साथ में. तब्बू, कनिका, रिग्रेट कर रहे हो ना तुम दोनों? आफ्टर सम हैवी शॉपिंग हम फाइनली पहुंच चुके थे रेलवे स्टेशन पे. ये तो फाइनली मेरा व्लॉग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया. आई मीन इस व्लॉग को बनाने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 1 साल लगाया होगा. अभी है अक्टूबर चल रहा है ना, जैन में गए थे, अक्टूबर में जाके मैं ये ख़त्म कर रही हूँ. पर एनीवेज, तो ये फाइनली ख़त्म हुआ. इट वाज रियली मेमोरेबल. यू गाइस आर सो लवली. आई लव यू ऑल. हाँ, बड़ी होगी तारीफ. बट अब जब मैं ये सब क्लिप्स वापस से देख रही हूँ तो आई मस्ट से आई एम रियली मिसिंग यू ऑल. सच बताऊँ तो ये जो बैच है ना 2019 to 2023 वाला, ये हमेशा मुझे याद रहेगा. एंड सच बता रही हूँ, आई रियली आई एम मिसिंग यू ऑल.